Hello friends, I am Karthik Patel. I am an assistant professor at JG College of Commerce. I have been in this teaching line since 2011. I teach accountancy and taxation to the students at undergraduate level, postgraduate level and even at the professional level like CA and CS. Today we are going to learn the subject taxation, and in taxation we are going to start with the computation of tax for individual. It means how to compute the tax as far as the individual is concerned. What is the basic exemption limit which is applicable to the individuals? As far as this subject is concerned, it is included in the syllabus of semester 3 SY BCom. This subject is a part of syllabus of semester 3 SY BCom Gujarat University. So let us start with the topic computation of tax for individual. किसी भी इंडिविजुअल को टैक्स कैसे पे करना है? Now before I start with the individual, let us understand what do you mean by assessee. इनकम टैक्स में बेटा हम लोग हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड assessee. Now what do you mean by assessee? Assessee का मतलब होता है any person. And what do you mean by person? The person include 7 categories. And what are those 7 categories? First one is individual, second one is HUF, Hindu Undivided Family, third one is firm, fourth one is company, fifth one is AOP BOI, Association of Person Body of Individual, sixth one is local authority, and the seventh category जो आगे की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होते हैं बेटा वो बाकी सारे सेवेंथ कैटेगरी में इंक्लूड हो जाएंगे. सो दैट इज एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन. तो बेटा ये 7 कैटेगरी है. क्या सर ये सातों कैटेगरी के लिए हमें टैक्स निकालना पड़ता है? आंसर इज यस. वी हैव टू कंप्यूट द टैक्स फॉर ऑल दिस 7 कैटेगरी. बट एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न, फॉर योर एग्जाम इन योर सिलेबस only one category is included, and that is how to compute the tax for individual. So let us begin the computation part. How to compute the tax as far as the individual is concerned. बेटा इंडिविजुअल को यहाँ पर एज के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया है. As far as the individuals are concerned, the individuals are divided into 3 parts according to their age. So first one is an individual जिनकी एज below 60 years है. An individual whose age is below 60 years. The first category is below 60 years. सर ये कौन से साल के लिए हम लोग ढूंढ रहे हैं? As far as your examination is concerned, for your examination purpose, your previous year will be 2019-20. and your assessment year will be 2020-21. Sir, what do you mean by previous year and what do you mean by assessment year? बेटा previous year का मतलब होता है वो साल जिसमें आपने अर्निंग की होती है. So we can say that previous year or financial year means the year in which we have earned the income. And what do you mean by the assessment year? बेटा previous year में जितनी इनकम हमने अर्न की होती है उसका हिसाब देना पड़ता है नेक्स्ट ईयर में. So that next year is called as assessment year. So that next year is called as assessment year. So as far as your examination is concerned, आपका previous year होगा previous year 2019-20 and your assessment year will be 2020-21. Next, सर ये किसके लिए applicable होगा? Below 60 years. सर इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है? बेटा इसमें रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएंगे. सर ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी पर्सन इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं है? सर हाउ शुड वी फाइंड आउट वेदर एनी पर्सन इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया? एंड सर क्या ये रेसिडेंशियल स्टेटस मुझे हर साल निकालना है? आंसर इज यस. बेटा मैं सिटीजनशिप की बात नहीं कर रहा हूं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो एक बार आपको मिल गई इसका मतलब पूरी जिंदगी चलती है, ये वो नहीं है. मैं बात कर रहा हूं रेसिडेंशियल स्टेटस की. Now why we need to find out the residential status of assessee for each financial year? हर वो financial year जिसमें आपने इनकम अर्न की है, क्या वो हर financial year के लिए मुझे residential status निकालना पड़ेगा? आंसर इज यस. Why? आंसर सुनना.
द इंसिडेंस ऑफ टैक्स डिपेंड्स अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी। फिर से, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स डिपेंड्स अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी। इसका मतलब किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को कितना टैक्स पे करना है उस साल के लिए, वो डिपेंड करता है उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। तो इसका मतलब हर साल मुझे ये रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा, तब तक उसको कितना टैक्स लगेगा वो मैं नहीं निकाल सकता। सो इसीलिए मैंने बोला द इंसिडेंस ऑफ टैक्स डिपेंड्स अपॉन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी। So it means for each and every financial year, first of all, we have to determine the residential status of that individual, and then only we can determine the amount which is taxable in the hands of that individual. ठीक है, तो बेटा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको कितना टैक्स लगता है वो पता चलेगा, बट उससे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। सर क्या हमें अभी ये निकालना है? आंसर इज नो। बेटा उसके लिए एक अलग से चैप्टर आता है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी, जहां पर आप लोग पढ़ोगे कि कोई भी बंदा इंडिया का रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट कब होता है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल हम इसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो बेटा वो आप लोग उस चैप्टर में पढ़ोगे, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी। फिलहाल हम आ जाते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि इंडिविजुअल को अगर प्रीवियस ईयर 2019-20 है तो सर कितना टैक्स लगेगा। तो बेटा इंडिविजुअल को एज के हिसाब से तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है बिलो 60 इयर्स, whether it is a resident or non-resident. Sir, for which previous year? Previous year is 2019-20 and assessment year is 2020-21. जिसकी एज 60 साल से कम है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। सर कितना टैक्स लगेगा? इनकम स्लैब एंड रेट ऑफ टैक्स। सर प्रीवियस ईयर में अगर कोई इंडिविजुअल की एज, इन द प्रीवियस ईयर अगर कोई इंडिविजुअल की एज 60 साल से कम है तो सर उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? बेटा 4 स्लैब रेट दिए हैं। पहला स्लैब है अप टू रुपीज 2,50,000, देयर इज नो अमाउंट ऑफ टैक्स। इसका मतलब प्रीवियस ईयर 2019-20 में अगर आपकी इनकम 2,50,000 है तो इसका मतलब आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स इन द प्रीवियस ईयर 2019-20 इफ योर नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू रुपीज 2,50,000। तो इसे हम क्या बुलाएंगे? इसे हम बुलाएंगे बेटा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। इट इज ऑल्सो नोन एज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। इसे हम क्या बुलाते हैं? इसे हम बुलाते हैं बेटा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। याद रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो आपका पहला स्लैब हो गया बेटा अप टू 2,50,000, जीरो, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। नेक्स्ट, मोर देन 2,50,000, मोर देन रुपीज 2,50,000 बट अप टू रुपीज 5 लाख, कितना टैक्स पे करना है? एट द रेट ऑफ 5%। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है बट अप टू रुपीज 5 लाख है तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? एट द रेट ऑफ 5%। नेक्स्ट, इफ योर इनकम इज इन एक्सेस ऑफ रुपीज 5 लाख बट अप टू रुपीज 10 लाख, then what is the rate of tax? It is applicable at the rate of 20%. It is applicable at the rate of 20%. And if your income is more than rupees 10 lakh, if your income is more than rupees 10 lakh, then it is taxable at the rate of 30%. So as far as the individual whose age is below 60 years, this slab rate is applicable to them. Next, the second category on the basis of age. अगर बेटा पहली कैटेगरी बिलो 60 ईयर है तो सेकेंड कैटेगरी क्या होगी? एन इंडिविजुअल हुज एज इज एज ऑफ 60 years or more but up to 80 years. बेटा सेकेंड कैटेगरी है इंडिविजुअल में कि जिनकी एज 60 साल या 60 साल से ज्यादा है बट अप टू 80 ईयर्स है। ना व्हाट डू मीन बाय 60 ईयर्स?
बेटा अगर प्रीवियस ईयर में कभी भी आपकी एज 60 साल, इसका मतलब आपने 60 इयर्स कंप्लीट कर लिए इन द प्रीवियस ईयर 2019-20, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू हैव कंप्लीटेड 60 इयर्स ऑफ एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20, आपको बेटा ये पॉइंट एप्लीकेबल होगा। सर उनको हम क्या बुलाते हैं? बेटा उनको हम बुलाते हैं सीनियर सिटीजन, टू हुम वी कॉल्ड एज ए सीनियर सिटीजन हुज एज इज 60 इयर्स ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। इसका मतलब जिस किसी भी इंडिविजुअल की एज 60 साल होती है उसको हम क्या बुलाते हैं? सीनियर सिटीजन। तो क्या सर ये हर सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल होता है? नहीं बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल होगा। इट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। It is applicable for only and only resident senior citizen. So it is applicable only and only for resident senior citizen. इसका मतलब बेटा ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा? वो बंदा रेसिडेंट भी होना जरूरी है, सिर्फ उसकी एज मैटर नहीं करेगी। तो बेटा ये पॉइंट कब एप्लीकेबल होता है? ये पॉइंट एप्लीकेबल होने के लिए दो कंडीशन है। आपकी एज प्रीवियस ईयर में 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन, द पर्सन मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को ही बेटा ये सेकंड पॉइंट एप्लीकेबल होगा। सर सेकंड पॉइंट में व्हाट इज द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट? बेटा ऊपर मैंने जो लिखा है ना उसमें सिर्फ एक ही चेंज मुझे करना है, और वो चेंज क्या है? तो बेटा आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हो जाएगी अप टू ₹3 लाख। What should be the basic exemption limit which is applicable in case of senior citizen? So in case of senior citizen, your basic exemption limit will be ₹3 लाख। तो बेटा 50,000 रुपए का और बेनिफिट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, तो बेटा मैं नेक्स्ट बोल सकता हूं कि बाकी आपके जो स्लैब है ना वो एज इट इज रहेंगे। तो इसका मतलब मोर देन ₹3 लाख, मोर देन ₹3 लाख अगर आपकी up to ₹3 lakh, greater than ₹3 lakh, but up to ₹5 lakh। तो ये तो वही एप्लीकेबल होगा जो हमने आगे लिखा है, सेम। इट इज एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 5%, ग्रेटर देन 5 लाख, बट अप टू ₹10 lakh at the rate of 20%, and if your income is in excess of ₹10 lakh, तो बेटा कितना एप्लीकेबल हो जाएगा रेट? एट द रेट ऑफ 30%। तो सर चेंज क्या हुआ? सिर्फ एक ही चेंज है। अगर प्रीवियस ईयर में आपकी एज 60 साल से ज्यादा बट 80 ईयर्स से कम है, एंड सेकेंड कंडीशन, इफ यू आर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हो तो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ जाएगी। आपको बेटा कितना बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगा? 3 लाख। और बेटा उसी तरह से थर्ड कैटेगरी है। व्हाट इज द थर्ड कैटेगरी? कि भाई जिनकी एज, इंडिविजुअल जिनकी एज कितनी है? एज ऑफ 80 ईयर्स और मोर। सर इनको क्या बुलाएंगे? बेटा इनको हम बुलाएंगे सुपर सीनियर सिटीजन। बट याद रखना बेटा ये भी सुपर सीनियर सिटीजन क्या होने चाहिए? रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। बेटा ये भी क्या होने चाहिए? रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। इसका मतलब प्रीवियस ईयर 2019-20 में अगर आपकी एज 80 इयर्स या उससे ज्यादा है तो बेटा आपको क्या माना जाएगा? सुपर सीनियर सिटीजन। बट बेटा अगर आपको ये थर्ड कैटेगरी का बेनिफिट चाहिए तो बेटा आप क्या होने चाहिए? इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2019-20 आप इंडिया के क्या होने चाहिए? रेसिडेंट होने चाहिए। सर क्या बेनिफिट मिलेगा? बेटा आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट और बढ़ा दी जाएगी अप टू ₹5 लाख। यू आर नॉट सपोज टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स। सीधा 5 लाख। इसका मतलब अगर प्रीवियस ईयर में आपकी एज 80 ईयर्स या 80 ईयर्स से ज्यादा है तो इसका मतलब आपको बेटा 5 लाख तक की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी। बट इट इज सब्जेक्ट टू आप इंडिया के रेसिडेंट है, आप उस साल के लिए इंडिया के रेसिडेंट है, तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। याद रखना, मैं बार बार क्यों ये वर्ड, बेटा ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि समझना हो सकता है कि कोई इंडिया का सिटीजन तो हो सकता है, उसकी एज 80 ईयर्स से ज्यादा हो सकती है, बट हो सकता है कि बेटा वो फॉरेन चला गया हो, और वो फॉरेन चला गया और बिकॉज ऑफ दैट उसका स्टेटस यहां पर चेंज हो रहा है। तो अगर उसका स्टेटस नॉन रेसिडेंट आ रहा है
एंड इवन दो उसकी एज 80 ईयर्स से ज्यादा है, तो क्या बेटा उसका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख होगा? आंसर इज नो। तो सर उस केस में उसको क्या एप्लीकेबल होगा बेटा? उस केस में उसे पॉइंट नंबर 1 एप्लीकेबल होगा, जहां पर मैंने लिखा है रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट। तो इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूं कि कोई भी नॉन रेसिडेंट हो, NR नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको बेटा उसकी एज मैटर ही नहीं करती है मेरे लिए, यस। तो उसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सीधा कितना मिलेगा? 2,50,000, दैट्स इट। नेक्स्ट, सो अप टू ₹5 lakh there is no requirement to make the payment of tax. Second, more than ₹5 lakh but up to ₹10 lakh at the rate of 20%, and more than 10 lakh it is taxable at the rate of 30%, that's it. तो बेटा किसी भी इंडिविजुअल को प्रीवियस ईयर में कैसे टैक्स लगेगा, इस तरह से हम लोग टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। फिर से बेटा मैं आप लोगों को बता दूं क्या किया हमने। ऑन द बेसिस ऑफ द एज ऑफ इंडिविजुअल हमने उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है बेटा। फर्स्ट कैटेगरी मैंने बताया, एन इंडिविजुअल हुज एज इज बिलो 60 ईयर्स, देन व्हाट इज द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट? द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज 2,50,000। 2,50,000 से ज्यादा but up to 5 lakh it is applicable at the rate of 5%. If your income is more than 5 lakh but up to 10 lakh it is taxable at the rate of 20%, and if your income is more than 10 lakh it is taxable at the rate of 30%. What is the second category as far as the individual is concerned, and to whom it is applicable? The second category is applicable to the individual whose age during previous year 2019-20 is 60 years or above but up to 80 years. Second condition, that person must be a resident of India as far as the previous year 2019 and 20 is concerned. तो सर कितना बेनिफिट मिलेगा? Then the basic exemption limit will be ₹3 lakh। और बेटा उसके बाद स्लेम स्लैब रेट है, और उसके बाद थर्ड कैटेगरी सर आपने बताई कि भाई वो इंडिविजुअल जिसकी एज प्रीवियस ईयर 1920 में 80 साल से या 80 से ज्यादा है, 80 या 80 से ज्यादा है, 80 और मोर देन 80 ईयर्स, एंड एट द सेम टाइम द पर्सन मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बेटा कितना बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है? अप टू ₹5 लाख आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, और बाकी 5 से 10 के बीच में 20 और 10 से ज्यादा है तो 30%, दैट्स इट। सर और क्या पे करना पड़ेगा? नेक्स्ट पॉइंट इज सरचार्ज। सर अब ये क्या है बेटा? सरचार्ज का मतलब होता है एडिशनल टैक्स। सर इतने से भी गवर्नमेंट का मन नहीं भरा तो अभी और टैक्स लगा दिया। देखो बेटा सरचार्ज तो लगाना पड़ता है। सरचार्ज इट इज अ एडिशनल टैक्स, और ये एडिशनल टैक्स बेटा हर किसी पे नहीं लगता है। देखो बेटा इतनी भी गिरी हुई नहीं होती है गवर्नमेंट, सोच समझकर बेटा ये टैक्स के रेट डिफाइन होते हैं, ये टैक्स के रेट डिसाइडेड होते हैं। जो ज्यादा पैसा कमाता है ना उसको ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है। तो इसका मतलब सरचार्ज सर कौन सी अमाउंट पे लगता है? और सर ये ज्यादा पैसे का मतलब आप क्या मानते हो? बेटा मैं कुछ नहीं मानता हूं, ये बेटा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई कितने पैसे ज्यादा है या कम है। तो इसका मतलब सरचार्ज सर कब से लगना शुरू होगा? तो याद रखो बेटा, अगर प्रीवियस ईयर 2019-20 में आपकी नेट टैक्सेबल इनकम अगर 50 लाख तक है, अरे सोचो 50 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, अप टू ₹50 लाख, इसका मतलब एनुअल में बात कर रहा हूं 50 लाख, इसका मतलब पर मंथ 4 लाख से ज्यादा, अप टू 4 लाख गिनो तो भी 48 लाख होता है। तो इसका मतलब बेटा क्या नहीं लगता है आपको कि इसके ऊपर सरचार्ज होना चाहिए? ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क है। तो इसका मतलब बेटा सरचार्ज कितनी अमाउंट पे लगती है? सो सरचार्ज विल बी लेविड इन केस इफ योर इनकम इज इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। तो बेटा शुरू कहां से की है सरचार्ज लगाना? अगर प्रीवियस ईयर में आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा। सर व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज? सो सरचार्ज विल बी एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 10% इफ NTI का मतलब होता है बेटा नेट टैक्सेबल इनकम। इफ नेट टैक्सेबल इनकम NTI is more than 50 लाख। तो बेटा पहला पॉइंट मैंने बता दिया कि सरचार्ज कब लगेगा। सरचार्ज विल बी लेविड एट द रेट ऑफ 10%। सर ये सरचार्ज किसके ऊपर लगता है? बेटा सरचार्ज विल बी लेविड ऑन इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स आपने कैलकुलेट किया है ना उसके ऊपर सरचार्ज लगता है। और सर कितना सरचार्ज लगता है? एट द रेट ऑफ 10% अगर आपकी NTI नेट टैक्सेबल इनकम कितने से ज्यादा है? मोर देन 50 लाख। सेकेंड, इट इज एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 15% इफ your NTI net taxable income is greater than 1 crore
greater than 1 crore but up to रुपीज 2 करोड़। वैसे बेटा ऊपर मैं लिख सकता हूं 50 लाख से ज्यादा बट अप टू 1 crore. Second, at the rate of 15% if NTI is greater than 1 crore but up to 2 crore. Third, at the rate of 25% if NTI is greater than 2 crore but up to rupees 5 crore. सर अभी तो रुक जाओ। नहीं बेटा, मैं तो रुकना चाहता हूं बट बेटा ये गवर्नमेंट, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने डिसाइड किया है तो बेटा मुझे लिखना पड़ेगा। और लास्ट है बेटा 37%। एट द रेट ऑफ 37% इफ एनटीआई इज ग्रेटर देन 5 करोड़। इसका मतलब बेटा टैक्स के ऊपर आपको सरचार्ज लगेगा। सर व्हाट डू मीन बाय सरचार्ज? बेटा सरचार्ज का मतलब होता है एडिशनल टैक्स। सर एडिशनल टैक्स कब लगता है? तो बेटा अप टू 50 लाख देयर इज नो सरचार्ज। 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है। बट इफ योर नेट टैक्सेबल इनकम इज इन एक्सेस ऑफ 50 लाख बट अप टू रुपीज 1 करोड़, आपको सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 10%। किसके 10% लगेगा? तो जो इनकम टैक्स हमने निकाला है ना, टैक्स कैलकुलेट किया है, उसके 10% लगेगा। सेकंड लगेगा एट द रेट ऑफ 15% इफ योर इनकम is in excess of 1 crore but up to 2 crore. Third लगेगा at the rate of 25% if your income is in excess of 2 crore but up to 5 crore. और finally at the rate of 37% if your net taxable income is in excess of 5 crore. तो ये है बेटा सरचार्ज। नेक्स्ट क्या लगेगा? नेक्स्ट लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सर ये क्या है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बेटा ये भी एक तरीके का टैक्स है और ये तो हर किसी में लगता है, इसके लिए कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इट इज लेविड एट द रेट ऑफ 4% ऑन व्हाट? ऑन इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। और अगर कोई सरचार्ज नहीं है तो कोई बात नहीं, तो इनकम टैक्स पे लगेगा। बेटा ये पहले लगता था एजुकेशन सेस, जिसे हम बोलते थे एसएचईसी सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। वो सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस पहले लगता था एट द रेट ऑफ 3%। कुछ साल पहले बेटा इसमें एच भी लगा दिया, इसका मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सो एज ऑफ नाउ वी कैन से दैट द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इट इज लेविड एट द रेट ऑफ 4%। तो इसका मतलब बेटा सबसे पहले हम सीक्वेंस में जाएंगे, पहले हम टैक्स निकालेंगे, उसके ऊपर हम सरचार्ज लगाएंगे इफ इट इज एप्लीकेबल। अगर सरचार्ज भी उस माने लगा दिया तो उसके बाद इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज दोनों को क्लब करेंगे और उसके ऊपर फाइनली बेटा हम लोग क्या लगाएंगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सो इट इज लेविड एट द रेट ऑफ 4%। नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट है रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। अब क्या है? देखो बेटा ये कुछ लग नहीं रहा है। अब देखो गवर्नमेंट आपको कुछ देना चाहती है, हर बार वन वे नहीं होता है, कभी कभी बेटा गवर्नमेंट भी क्या है हमको कुछ देना चाहती है, तो कुछ दिया है। यहाँ पर क्या है? ये रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो बेटा किसको रिबेट मिलेगी? ये बेनिफिट सिर्फ किसको मिलेगा? तो पहला चीज है कंडीशन है बेटा, दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। टू हुम। तो इसका मतलब बेटा ये रिबेट किसके लिए है? टू हुम। सो इट इज एप्लीकेबल, इट इज अवेलेबल ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल। ये रिबेट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होती है? दिस रिबेट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल। सेकेंड, व्हेन। सर ये रिबेट कब मिलेगी? व्हेन। सो ये रिबेट कब मिलेगी? इफ एनटीआई इज अप टू ₹5 लाख। इसका मतलब बेटा आपकी नेट टैक्सेबल इनकम अगर प्रीवियस ईयर 2019-20 में अप टू ₹5 लाख है
तो आपको बेटा ये रिबेट मिलेगी। तो दो कंडीशन है आपको ये रिबेट, बेटा रिबेट का मतलब क्या हो जाएगा, रिबेट इट मींस अ डिस्काउंट। रिबेट का मतलब होता है आपको बेटा रिबेट मिलेगी। ये रिबेट आपको कब मिलेगी, दो कंडीशन है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, इसका मतलब बेटा रेसिडेंट इंडिविजुअल के अलावा ये किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो इट मींस इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द रिमेनिंग कैटेगरी, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। क्या बेटा वो लोग ये क्लेम कर सकते हैं, आंसर इज नो। दिस रिबेट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर रेसिडेंट, और रेसिडेंट में भी बेटा वो पर्सन क्या होना चाहिए, वो पर्सन इंडिया का, सॉरी वो रेसिडेंट, वो इंडिविजुअल क्या होना चाहिए, इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। द पर्सन मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, और इंडिविजुअल भी कौन सा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि कब मिलेगी, तो बेटा प्रीवियस ईयर में अगर आपकी एनटीआई नेट टैक्सेबल इनकम अप टू ₹5 लाख है तो ही बेटा आप ये क्लेम कर सकते हो। ठीक है सर, कितनी मिलेगी, अमाउंट, what is the amount of rebate? So the amount of rebate is tax amount, इसका मतलब जो हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स, वो टैक्स अमाउंट, और ₹12,500 whichever is less, विचेवर इज लेस। सो फाइनली बेटा आपको रिबेट कितने मिलेगी, कितना टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा आपको, तो मैं बोल सकता हूं बेटा व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिबेट दैट यू कैन क्लेम, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिबेट इज 12,500। बेटा याद रखना ये पॉइंट, सेक्शन 87A रिबेट मिलेगी। सो रिबेट किसके लिए एप्लीकेबल होती है, सो रिबेट इज एप्लीकेबल फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल। सेकंड, कब रिबेट आपको मिलेगी, अगर प्रीवियस ईयर 1920 में अगर आपकी एनटीआई नेट टैक्सेबल इनकम कितनी है, अप टू रुपीज 5 लाख है, तो बेटा आपको किसका बेनिफिट मिलेगा, रिबेट का बेनिफिट मिलेगा। एंड सर व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिबेट दैट वी कैन क्लेम, ₹12,500। सो व्हाट इज द फाइनल अमाउंट, 12,500, दैट्स इट। तो बेटा कितने पॉइंट्स हमने किए यहां तक, हमने बेटा पॉइंट्स किए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल में, हमने बेटा 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। बिलो 60 ईयर्स आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होगी 2,50,000। अगर आपकी एज बेटा 60 या 60 से ज्यादा है बट अप टू 80 ईयर्स है, तो बेटा हम आपको मानेंगे सीनियर सिटीजन। बट सीनियर सिटीजन के साथ वो बंदा इंडिया का क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। तो आपको बेटा कितनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी, अप टू ₹3 लाख। बाकी बेटा आपके स्लैब रेट वही रहेंगे, आपका टैक्स का रेट भी वही रहेगा। थर्ड कैटेगरी हमने कौन सी बताई, an individual whose age is 80 years or above during previous year 2019-20, जिसको हम क्या बोलेंगे, सुपर सीनियर सिटीजन। बट सेकंड कंडीशन बेटा वो सुपर सीनियर सिटीजन इंडिया का क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, तभी बेटा उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितनी होगी, अप टू ₹5 लाख। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब होता है एडिशनल टैक्स। ये सरचार्ज कब लगेगा, सरचार्ज विल बी लेविड इन केस इफ योर नेट टैक्सेबल इनकम इज इन एक्सेस ऑफ 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा है बट अप टू 1 करोड़ है, देन इट इज एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 10%। बेटा 15% लगेगा अगर आपकी एनटीआई 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 2 करोड़ है, 25% लगेगा अगर आपकी एनटीआई 2 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 5 करोड़ है, और 37% लगेगा if your NTI is greater than 5 करोड़। नेक्स्ट मैंने बताया हेल्थ एंड एजुकेशन सेज इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल, इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 4%। सर किसका 4%, तो जो इनकम टैक्स मैंने निकाला उसमें हम सरचार्ज ऐड करेंगे अगर एप्लीकेबल हो रहा है तो, अगर सरचार्ज नहीं है तो सीधा जितना मैंने इनकम टैक्स निकाला उसका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेज लगेगा, और अगर सरचार्ज है तो पहले हम बेटा इनकम टैक्स निकालेंगे, उसके ऊपर बेटा उसका 10%, 15, 25, 37% सरचार्ज निकालेंगे, दोनों को क्लब करेंगे, जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर बेटा हम लगाएंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। और लास्ट पॉइंट मैंने बताया आपको रिबेट। बेटा ये रिबेट किसके लिए एप्लीकेबल होगी, दिस रिबेट इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल, बट बेटा वो इंडिविजुअल क्या होना चाहिए, द इंडिविजुअल मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर ये क्लेम मैं कब कर सकता हूं, तो दूसरी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, आपकी एनटीआई प्रीवियस ईयर में 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब दो कंडीशन, रेसिडेंट इंडिविजुअल प्लस एनटीआई अप टू ₹5 लाख ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2019-20। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन क्लेम एज अ रिबेट अंडर सेक्शन 87 है 12,500। दैट्स इट, यस। अब बेटा चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिस्टर एक्स कि जिनकी एज है 52 ईयर्स ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, मिस्टर एक्स जिसकी एज है बेटा 52 ईयर्स, ठीक है, मिस्टर एक्स जिनकी एज है प्रीवियस ईयर में 52 ईयर्स है, उनकी टोटल इनकम है 4 लाख रुपए, उनकी टोटल इनकम है 4 लाख रुपीस। सेकेंड है
8,80,000. Third income है 15 lakh and the fourth income is 80,000. I'm sorry, 80 lakh. Mr. X whose age is 52 years, मान के चलते हैं he is a resident of India. He is a resident of India. Mr. X whose age during previous year 2019-20 is 52 years, who is a resident of India. और बेटा उनकी 4 इनकम है, ठीक है ना. 4 इनकम, इसका मतलब बेटा 1 बाय 1 ये कैलकुलेशन हम करेंगे. तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूं 4 लाख. तो बेटा पहला आंसर नंबर 1, अगर बेटा उनकी प्रीवियस ईयर 2019-20 में इनकम 4 लाख है, इसका मतलब असेसमेंट ईयर 2020-21 4 लाख रुपए है, तो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स? तो सबसे पहले बेटा 52 ईयर्स है, इसका मतलब आप लोग बेटा मुझे बता सकते हो कि यहां पर हमने जो एज डिफाइन की है, कौन सा पॉइंट एप्लीकेबल होगा? पॉइंट नंबर 1, बिलो 60 ईयर्स एंड ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बेटा बिलो 60 ईयर है, उसके बाद तो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो 4 लाख रुपए है, तो इसका मतलब व्हाट इज द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट? द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज अप टू रुपीज 2,50,000. सो व्हाट वी नीड टू डू बेटा, 4 लाख को मैं स्लैब में, ये जो स्लैब दिया है ना, अकॉर्डिंग टू स्लैब मैं इसको डिवाइड करने जा रहा हूं. सो अप टू रुपीज 2,50,000 कोई टैक्स पे नहीं करना है. नेक्स्ट स्लैब कौन सा है बेटा? नेक्स्ट स्लैब था सर मोर देन रुपीज 2,50,000 बट अप टू रुपीज 4 लाख. अप टू रुपीज 4 लाख. 4 लाख आएगा? नहीं, 4 लाख नहीं आएगा बेटा. 4 लाख तक नहीं जाना है, मुझे तो यहां पर स्लैब लिखना है, मुझे तो यहां पर स्लैब ही लिखना है. सो मोर देन 2,50,000 बट अप टू रुपीज 5 लाख इट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5%. तो इसका मतलब अब समझना बेटा, मैं टैक्स कैसे कंप्यूट करते हैं वो मैं बता रहा हूं. तो मेरी इनकम को मुझे क्या करना है बेटा, ये जो स्लैब दी है ना, ये हर स्लैब में मुझे मेरी इनकम को डिवाइड करना है. तो सबसे पहले मैंने 4 लाख का पहला टुकड़ा निकाला. 2.5 लाख तक क्या हो जाएगा बेटा? 2.5 लाख तक गवर्नमेंट भी जानती है बेटा, है ना, कि भाई फैमिली चलानी है, तो 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है. नेक्स्ट आपका स्लैब आएगा मोर देन 2,50,000 बट अप टू रुपीज 5 लाख एट द रेट ऑफ 5%. ये मेरा स्लैब है. बट बेटा मुझे तो क्या करना है, मेरी जितनी टैक्सेबल इनकम है वहां तक ही टैक्स निकालना है ना, तो मुझे डिफरेंस निकालना है. कहां से कहां तक का डिफरेंस निकालना है? तो देखो बेटा 2.5 लाख से मेरी टोटल इनकम कितनी है मुझे बताओ. वेदर माय इनकम इज मोर देन 5 लाख और लेस देन 5 लाख? इट इज लेस देन 5 लाख. देन वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस फ्रॉम 250 टू 4 लाख. तो बताओ 250 से 4 लाख का डिफरेंस कितना निकल के आएगा? द डिफरेंस इज 1,50,000. बेटा डिफरेंस कितना निकल के आएगा? डिफरेंस निकल कर आएगा, डिफरेंस कितना निकल के आएगा? डिफरेंस निकल कर आएगा बेटा 1,50,000. 1,50,000 टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5%. कितना टैक्सेबल होगा? एट द रेट ऑफ 5%. तो बताओ बेटा कितना टैक्स निकल कर आएगा? 1,50,000 इंटू 5%. इसका मतलब आपका टैक्स आ गया बेटा 7,500. वंस अगेन फिर से देखते हैं बेटा क्या किया मैंने. अप टू रुपीज 2,50,000 कोई टैक्स नहीं होगा. सेकंड मैंने किया मोर देन 2,50,000 बट अप टू रुपीज 5 लाख इट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5%. अब आपको करना क्या है, देखना है आपकी इनकम 5 से ज्यादा है या 5 से कम है. सर 5 से कम है, तो डिफरेंस निकालना है बेटा 250 टू 4 लाख. तो बताओ डिफरेंस कितना निकला? 250 टू 4 लाख, इसका मतलब 1.5 लाख. तो 1.5 लाख पे कितना टैक्स लगेगा? 5%. दैट इज 7,500. दैट्स इट. मुझे यहां पे रुक जाना है, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकम ही नहीं है बेटा. तो स्लैब लिख के क्या करेंगे, वैसे भी जीरो हो जाएगा. तो ये आपका टैक्स हो गया. अब मुझे बताओ बेटा एक और बात बताओ, ये मेरा टैक्स आ गया, अब क्या करेंगे? तो बेटा सबसे पहली बात, अब हम लोग बेटा रिबेट क्लेम करेंगे यहां पर. अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर? रिबेट क्लेम करेंगे. रिबेट अंडर सेक्शन 87A. Rebate under section 87, and for that we have to prepare working note number 1.
कितनी रिबेट यहाँ पर, तो रिबेट के लिए बेटा हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 प्रिपेयर करते हैं और मैंने बताया था बेटा कि रिबेट कौन से केस में मिलेगी। बेटा रिबेट मिलने के लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन वो बंदा इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए और दूसरी कंडीशन उसकी एनटीआई 5 लाख से कम होनी चाहिए। तो बेटा इस केस में देखो मिस्टर एक्स लिखा हुआ है कि भाई रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड एट द सेम टाइम क्या उसकी इनकम 5 लाख से कम है, आंसर इज यस। तो इसका मतलब क्या बेटा वो रिबेट क्लेम कर सकता है, आंसर इज यस। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एज Mr. X is a resident individual and his NTI is up to rupees 5 lakh. He can claim रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो बेटा कितनी रिबेट होगी, तो मैंने बताया था रिबेट कितनी होगी, तो अमाउंट ऑफ टैक्स मैंने बोला था रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितनी रिबेट मिलेगी, तो मैंने बोला था अमाउंट ऑफ टैक्स। तो बेटा अमाउंट कितनी निकल कर आई हमारी टैक्स की अमाउंट 7500 और 12500 विच एवर इज लोअर whichever is less, so that is rupees 7500, that is rupees 7500। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर मुझे रिबेट, इसका मतलब डिस्काउंट कितना मिल जाएगा, पूरा 7500। तो बताओ भी मेरा नेट टैक्स पेएबल कितना आ जाएगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट टैक्स पेएबल, आपका नेट टैक्स पेएबल कितना हो जाएगा, 0। आई होप आई मेक इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक और चीज़ बेटा मैं बताना चाहता हूँ, ये रिबेट जो हमें कैलकुलेट किया ना, ये रिबेट मुझे कब कैलकुलेट करनी है, ये रिबेट मुझे कैलकुलेट करनी है, ये रिबेट मुझे कैलकुलेट करनी है, रिबेट चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रिबेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड rebate is always calculated before adding rebate is always calculated before adding health and education cess। तो याद रखना बेटा ये पॉइंट आप लोग कि भाई हमेशा हम लोग जो रिबेट का कैलकुलेशन करते हैं, रिबेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बिफोर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो इसका मतलब बेटा ऐड करने से पहले ही हमें रिबेट कैलकुलेट करनी है। तो इस केस में बेटा मेरा टैक्स कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट देखो बेटा कितनी इनकम है मेरी टोटल इनकम मैंने बताई थी ₹8,80,000, ₹8,80,000। सो फटाफट बेटा टैक्स कैलकुलेट करते हैं। 8,80,000 कितना आएगा 8,80,000 पे, तो अब फटाफट फर्स्ट अप टू ₹2,50,000 टैक्स आपका हो जाएगा 0। सेकेंड मोर देन 2,50,000 बट अप टू ₹5 lakh at the rate of 5%। अब बताओ बेटा whether my income is more than 5 lakh or less than 5 lakh, it is more than 5 lakh। if my income is more than 5 lakh then we have to consider the difference of slab का डिफरेंस कितना हो जाएगा सर, स्लैब का डिफरेंस भी वही आएगा 2,50,000। सो 2,50,000 इंटू 5% कितना आया बेटा 250 इंटू 5, टैक्स कितना आएगा आपका 12,500। क्या थर्ड स्लैब में जाना है, यस क्योंकि बेटा मेरी इनकम 5 लाख से ज्यादा है। सो मोर देन ₹5 lakh but up to rupees 10 lakh at the rate of 20%।
तो अब मुझे बताओ बेटा वेदर माई इनकम इज मोर देन 10 लाख और लेस देन 10 लाख। सर इट इज लेस देन 10 लाख। तो ये तो स्लैब है 10 लाख तक का, तो मुझे तो इनकम कहां तक ले जानी है, तो जितनी मैंने इनकम अर्न की है प्रीवियस ईयर में, तो मेरी प्रीवियस ईयर में इनकम कितनी है 8,80,000, तो बेटा 8,80,000 तक मुझे जाना है। देन वी हैव टू कंसीडर द डिफरेंस बिटवीन 5 लाख टू 8,80,000। तो 5 to 880 का डिफरेंस कितना होगा? सो सर द डिफरेंस इज 3,80,000 एंड इट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। तो बताओ बेटा डिफरेंस कितना निकल के आया? सो दैट इज 76,000, 3,80,000 इंटू 20%, 76,000। तो बताओ टोटल कितना निकल कर आएगा? 88,500। ये आ गया आपका 88,500। बताओ बेटा क्या इसमें रिबेट हम क्लेम करेंगे? सर आंसर इज नो, आंसर इज नो, क्योंकि बेटा अब की बार मेरी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, माई इनकम इज मोर देन 5 लाख। बताओ बेटा इसमें सरचार्ज लगेगा? सर आंसर इज नो, क्योंकि सरचार्ज कब लगता है? सरचार्ज विल बी लेविड ओनली इन केस इफ योर इनकम इज इन एक्सेस ऑफ 50 लाख। सर 50 लाख से मेरी कम है और रिबेट मिलेगी? नहीं सर, रिबेट मिलेगी कब रिबेट मिलती है? अप टू 5 लाख। ये तो मेरी मोर देन 5 लाख है, तो इसका मतलब ये ऐसा एग्जाम्पल हो गया जहां पर रिबेट भी आपको नहीं मिलेगी एज वेल एज सरचार्ज भी नहीं लगेगा। तो बेटा ये क्या आपका फाइनल आंसर है? आंसर इज नो। मैंने बताया था बेटा कि एक चीज हमेशा इसके ऊपर लगेगी, हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगेगा? एट द रेट ऑफ 4%। सो 88,000 का 4% निकालो बेटा, आई होप आएगा 3540, 3540। तो ये आ जाएगा बेटा टोटल टैक्स पेएबल, टोटल टैक्स पेएबल कितनी अमाउंट आएगी? 92,040, 92,040। सो दैट्स इट। ये हो गया सेकंड एग्जांपल। नेक्स्ट बेटा थर्ड एग्जांपल, कितनी इनकम ली है? थर्ड एग्जांपल में हमारी इनकम कितनी है? अप टू रुपीज 15 लाख है ना, 15 लाख। बताओ इसमें फटाफट, अब इसमें चारों स्लैब आ जाएंगे। तो फर्स्ट में लिखो बेटा, फर्स्ट अप टू रुपीज 2,50,000 कितना टैक्स लगेगा? सर एक भी रुपया आपको टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट बेटा दूसरा होगा मोर देन रुपीज 2,50,000 बट अप टू रुपीज 5 लाख, इट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 5%। अब बेटा मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, ये सेम है ना, मेरी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो बताओ डिफरेंस कितना निकला? डिफरेंस हम लेंगे स्लैब का, क्योंकि मेरी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो डिफरेंस लेंगे 2.5 से 5 के बीच में, डिफरेंस आ गया 250 एट द रेट ऑफ 5%। तो आ गया बेटा 12,500। नेक्स्ट वन इज ग्रेटर देन रुपीज 5 लाख बट अप टू रुपीज 10 लाख, इट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। बताओ बेटा मेरी इनकम 10 लाख से ज्यादा है या कम? माई इनकम इज मोर देन 10 लाख। तो इसका मतलब यहां पर भी बेटा स्लैब का डिफरेंस निकालेंगे। 5 से 10 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा बेटा? डिफरेंस बिटवीन 5 to 10 डिफरेंस आएगा सर 5 लाख। सो 5 लाख इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। बताओ कितना आएगा बेटा टैक्स? टैक्स आएगा आपका 1 लाख। एंड फाइनल बेटा लास्ट स्लैब, मोर देन रुपीज 10 लाख, मोर देन रुपीज 10 लाख, इट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%। बताओ बेटा आपकी इनकम 10 लाख से कितनी ज्यादा है? आपकी टोटल इनकम है 15, तो डिफरेंस निकलेगा बेटा 10 से 15 के बीच में कितना डिफरेंस निकला बेटा? 5 लाख। तो बेटा ये 5 लाख पे आपका टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 30%। तो बताओ बेटा कितनी इनकम निकल कर आई आपकी, कितना टैक्स निकल कर आया? 5 लाख। इसका मतलब 1,50,000। तो टोटल कर दो बेटा कितना आएगा? 150 + 1 + 12,500, सो 2,62,500। बताओ बेटा क्या कोई रिबेट मिलेगी? क्या कोई रिबेट मिलेगी आपको? आंसर इज नो सर, कोई रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकम 5 से ज्यादा है। क्या सरचार्ज लगेगा? नहीं सर, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा? लगेगा बेटा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। निकालो बेटा 2,62,500 इंटू 4% कितना आएगा? 10,500। तो बेटा फाइनल टैक्स पेएबल, फाइनल tax payable, what is the final amount of tax payable? The final amount of tax payable is 2,73,000. And the last example is your total income is rupees 80 lakh. If your income is rupees 80 lakh, first up to rupees 2,50,000, what is the amount of tax payable? 0. Second, greater than rupees 2,50,000 but up
to rupees 5 lakh, but up to rupees 5 lakh at the rate of 5%. So 250 into 5%, it means 12,500. Third, more than rupees 5 lakh, but up to rupees 10 lakh at the rate of 20%. बेटा मेरी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है. वंस अगेन वी हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ स्लैब. सो 5 lakh इंटू 20%. सो वी कैन से 1 lakh. And last slab is greater than rupees 10 lakh. It is taxable at the rate of 30%. तो बेटा मेरी टोटल इनकम कितनी है 80 लाख. तो 10 लाख के ऊपर मेरी इनकम कितनी जा रही है 70 लाख. सो 70 लाख इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%. तो कितना आ जाएगा बेटा, टोटल मेरा आ जाएगा 2,10,000. सो 2,10,000 प्लस, I'm so sorry, it is not 2,10,000, it is 21 lakh. बेटा it is 70 lakh into 30%. So 70 lakh into 30%, it means it is 21 lakh. And tell me what is the total. 21 lakh plus 1, 22 lakh. So 22 lakh 12,500. ये आ गया मेरा टोटल टैक्स पेएबल 22,12,500. अब बताओ बेटा इसमें क्या करना है, क्या इसमें सरचार्ज लगेगा? आंसर इज यस. अब देखो बेटा पूरी सीक्वेंस. सरचार्ज इज एप्लीकेबल एट व्हाट रेट? बताओ बेटा मेरी टोटल इनकम कितनी है 80 लाख, और सरचार्ज मैंने बताया था कि अगर 80 है इसका मतलब 50 से 1 करोड़ के बीच में है, तो सरचार्ज कितना लगेगा? सरचार्ज विल बी लेविड एट द रेट ऑफ 10%. तो सरचार्ज 10% किसका लगेगा? तो इसका मतलब सरचार्ज इसका लगेगा, इनकम टैक्स का. मेरा जो टैक्स आया, तो बेटा मेरी टैक्स की अमाउंट कितनी है 22,12,500, उसके 10%. तो उसका 10% आएगा बेटा 2,2,1,250 2,2,1,250 2,21,500. बेटा इसका टोटल करो, इनकम टैक्स प्लस इसका टोटल करो, तो इसका टोटल आएगा बेटा 24,33,750. यस, हमें करेक्ट? यस, 24,33,750. तो ये आ गया बेटा आपका टैक्स. नेक्स्ट, और इसमें हम क्या ऐड करेंगे? इसमें ऐड करेंगे बेटा हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इट इज एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 4%. तो बेटा कैलसी में इसके 4% निकालो. 24,33,750. तो इसके 4% आएंगे बेटा 97,350. और फाइनल इसका टोटल कर दो, इसका टोटल आएगा बेटा 25,31,100. तो ये हो गया बेटा आपका नेट टैक्स पेएबल. I hope I make it clear to all of you. 4 एग्जाम्पल बेटा हम लोगों ने लिए और कैसे इंडिविजुअल का टैक्स निकालना है. आई होप बेटा अब घर पे भी आप लोग बेटा अपने पेरेंट्स का आराम से बेटा टैक्स कैलकुलेशन अपनी तरह से निकाल के दे सकते हो. बेटा देर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर विच आर अवेलेबल. देर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर विच आर अवेलेबल इन गूगल. आप लोग बेटा सर्च करोगे टैक्स कैलकुलेटर, तो आपको कैलकुलेटर्स मिल जाएगा. उस कैलकुलेटर में आप लोग बेटा यही डालो प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, और जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया बेटा वही एग्जाम्पल आप लोग डालो. आपको सॉफ्टवेयर बेटा यही आंसर निकाल के देगा. बट अल्टीमेटली दी सॉफ्टवेयर आर मेड बाय अ पर्सन. तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर भी हम लोगों ने ही बनाया है. तो बेटा हमको समझ में आना चाहिए कि टैक्स की अमाउंट कैसे निकाली जाती है. ठीक है ना? सो दैट्स इट. थैंक यू ऑल ऑफ यू.